हमें गर्व है कि हम उन कारीगरों का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने अपने हाथों से भारतीय हस्तशिल्प की विरासत को जीवित रखा है. This event is a tribute to their artistry, skill and dedication. Before we move forward, let's take a moment to acknowledge the incredible panel of experts who have joined us today. A big round of applause for them. इनका अनुभव और ज्ञान हमें भारतीय हस्तशिल्प की भविष्य की दिशा दिखाएगा. Let's show them our appreciation. Once again, a heartfelt welcome to everyone present here. मैं हूँ इशिता और मेरे साथ है मेरी co-host रितु और लाविन्या, and we are honored to guide you through today's event. Today is a celebration of India's rich craftsmanship, a platform to discuss its evolution, and a way to appreciate the artisans who bring our culture to life. We request our panel members to join us for the lighting lamp. हम ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती की आराधना के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे. We request our panel members to join for the lighting of the lamp, followed by a soulful Saraswati Vandana by my co-host Ishita. या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रांगदा या वीणावर दंडवंदित करा या श्वेत मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजा व्यापः. Thank you, Ishita. इस सुंदर वंदना के लिए may wisdom and creativity guide us throughout this day. We are honored to have with us a distinguished panel of experts who have made remarkable contributions in the fields of design, culture and heritage. Let us introduce and felicitate our esteemed panelists. Shri Ram Singh Rathwar is an Indian politician, a former member of parliament known for his dedication to tribal welfare and public service. He served multiple terms in the Rajya Sabha and Lok Sabha representing Gujarat's Chota Udaipur constituency. As the chairman of TriFed, he has worked to uplift tribal communities through sustainable market initiatives. I would like to call Dr. Samit Sood sir to facilitate our esteemed chief guest, Shri Ram Singh Rathwar, with Gujarat's most popular and celebrated G.I. Patola shawl. A big round of applause, please. Dr. Sanjay Joshi, an IAS officer of Government of Gujarat, is the Executive Director of Index C. Dr. Joshi has put up more than 30 years of service in the government, working in various departments, namely Panchayat Revenue Civil, Supply Disaster Management and Urban Development. He has degrees in Civil Engineering, Sociology, Law and Disaster. Dr. Joshi has a PhD on life of Sardar Vallabhbhai Patel. I would like to call upon Dr. Pranav, Joint Director, NIFT Gandhinagar, to felicitate our esteemed guest, Dr. Sanjay Joshi, with Gujarat celebrated G.I. Patola shawl. Thank you, sir. Professor Shanta Kumar, Director of Gujarat National Law University,
has 30 years of teaching experience and also serves as provost of Gujarat Maritime University and a president of Gujarat International Maritime Aviation Center. Specializing in environmental, human rights, and constitutional law, he has authored multiple books and research papers. He represents South and West Asia at IUCN Academy of Environmental Law and holds key position in legal education bodies. I would like to call upon Dr. Jagjit Kaur, Associate Professor, CC Foundation Program, to felicitate our esteemed guest with Gujarat's popular G.I. Patola shawl. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Professor Dr. Samit Sood, Director, NIFT Gandhinagar, is an academician and a researcher with 21 years of experience in HR, operations, fashion education, and research. He specializes in textile sustainability, innovations, product costing, and organizational transformation. As the director of NIFT Gandhinagar, he has led key textile projects including capacity building in Ethiopia and craft cluster interventions in India. I would like to call upon Mr. Asid Bassar to facilitate our esteemed guest with Gujarat's most popular and celebrated G.I. Patola shawl. Thank you, sir. Mr. Ashok Mondal, an alumnus of Vishwa Bharati and NID Ahmedabad, is the director of NID and an expert in lifestyle accessory design and universal design. He has contributed to MSME initiatives, artisan training, and the Indian Footwear and Leather Industry Project under DPIIT. Passionate about uplifting indigenous design globally, he advocates for design's role in nation building. I would like to call upon Professor Dr. Kruti Dholakia Ma'am, Associate Professor CCMDis, to felicitate our esteemed guest, Professor Dr. Ashok Mondal, with Gujarat's most popular and celebrated G.I. Patola shawl. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Sri Raman Datta is the founding member and General Secretary of BSL, playing a pivotal role in its growth and development. With a strong vision and leadership, he has been instrumental in shaping the organization's mission and initiatives. I would like to call upon stage Professor Dr. Jagruti Mishra, Associate Professor CCMFM, to felicitate our esteemed guest, Sri Raman Datta sir, with Gujarat's most popular and celebrated G.I. Patola shawl. Today's panel discussion is about Vikas plus Virasat. Intellectual property rights, IPR, significantly contribute to protecting culture and creativity while fostering responsible and sustainable innovation. The notion of geographical indications, GI, profoundly aligns with India's cultural and artistic heritage. India's GI landscape is vital towards nation building via supporting the government of India's efforts like Atmanirbhar Bharat, Swarnim Bharat, or Vikas Bharat, and its underpinning impulse of Vikas P, Virasat P. The esteemed panel, involving expertise in diverse areas, shall help address some of the most crucial ideas and issues encompassing preserving and promoting our cultural heritage. I would like to hand it over to our moderator, Mr. Asid Bhatt sir, Associate Professor, CIC, NIFT Gandhinagar, to commence the panel discussion. Very good morning to all of you. It is quite a privilege to moderate this panel discussion while having such esteemed panelists on dais. And since GI is going to be the most important differentiating factor in the coming years, and Government of India is pushing GI in all aspects, it would be very enriching session, I hope, for all of you.
I would like to first invite comments from our esteemed panelists, one by one, peculiar to their domain of expertise and how do they look at GI from that perspective. In this regard, I would first like to invite our chief guest, Shri Ram Singh Rathwa ji. नमस्कार. जैसे आप काफी सालों से काम किया है इस क्षेत्र में, पर अभी जैसे GI इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has initiated GI, particularly the DPIIT, Ministry of Promotion. How do you see GI in relation to transgender communities, startup communities, IPR, like indigenous knowledge systems and all that? Yes, so in relation to what is also very prevalent these days, Bharatiya Gyan Parampara, indigenous knowledge systems, and you have worked for so many years in that area. What are your initial thoughts and how do you look at this initiative of GI in that regard? Thank you. GI शब्द हमारे लिए एक नया है और परंपरा के हिसाब से जो हमारा प्रोडक्ट है उनको मार्केट के हिसाब से हमारा जो समाज है यानी कि ट्राइबल समाज कभी देखा ही नहीं है कि ये GI क्या है, कैसे है, क्यों है, हम नहीं जानते थे. हमने हमारी ज़रूरियात के मुताबिक हमने जो चाहा वो बना लिया, यूज़ किया. अगर ज़्यादा बढ़ा तो बाज़ार में जाके बेच आइए, इतना ही हम जानते हैं. उसके बारे में हम आगे कभी गए ही नहीं है और सोचे भी नहीं है. अब दुनिया पूरा हमारे प्रोडक्ट के पीछे सबको रुचि है और सब एक दूसरे शब्द में अगर कहे तो हमारा प्रोडक्ट के पीछे दुनिया पागल बनने जा रही है. यानी पागल तो नहीं है लेकिन पागल बनने जा रही है. ये ट्राइबल प्रोडक्ट है ऐसा करके, तो उसमें कोई गलत नहीं है, ये तो दुनिया जानती है. और हम जितना बनाते हैं, जितना करते हैं, वो साफ साफ सुथरा हम बोल देते हैं कि हम ये कर रहे हैं. इसमें किसी भी तरह का कोई मिलावट नहीं है, यहाँ तक का दुनिया को पता है. अब समय ये आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारा प्रोडक्ट पहुँचे और हमारा प्रोडक्ट ट्राइबल के नाम के ऊपर हम जो कमा रहे हैं, हमें जो मिल रहा है, उनके नाम के ऊपर बाकी जो बेनिफिशियरी है यानी कि जो मार्केट में ये प्रोडक्ट जो मार्केट में लाते हैं वो कितना प्राइस लेते हैं वो हमें अंदाजा ही नहीं है. और इसीलिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो GI टैग में यानी हमारा नामांकित होना बहुत ज़रूरी है. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ और आज के तारीख में और यहाँ जो बैठे हैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ. महुए का एक पेड़ है, उसमें फ्लावर भी आते हैं, उनका प्रोडक्ट बहुत सारा बनता है महुआ के प्रोडक्ट के ऊपर. और जितने भी हमारे आदिवासी बंधु हैं उनको पता है. उसके बाद उनका जो बीज आता है उनको हम डोली बोलते हैं और वो डोली में से जो तेल निकलते हैं उनका बोलते हैं डोली यानी
ट्राइबल के लैंग्वेज में ढोलियो बोलते हैं, ढोलिया का तेल या महुए का तेल, ये बाजार में है। हम हमारी ज़रूरत के हिसाब से वो डोले का तेल निकाल के हमारे घर के यूज़ में, खाने के लिए यूज़ में ले आते हैं। बाकी का जो उनका तेल निकलता है वो बाहर चला जाता है। और मैंने जब देखा है अमेज़न के ऊपर उनका प्राइस करीब करीब 1200 से 1500 या 1800 रुपये में पर लीटर बिकता है। ये जिनके पास मोबाइल है वो अभी भी सर्च मारो और देखो कि उनका बाजार में कितना प्राइस है। तो अगर जीआई टैग बन गया होता तो बाजार के हिसाब से हमें उनकी रॉयल्टी मिलती, लेकिन जीआई टैग न बनने की वजह से हमें रॉयल्टी कुछ मिलती नहीं है। और बाकी के जो व्यापारी है वो उनका मुनाफा ले रहे हैं। तो आज की तारीख में ये जीआई टैग करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ जो जितने भी हमारे एक्सपर्ट जो बैठे हैं वो हमें मदद करने के लिए तैयार है। कानून के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से और बाकी के हिसाब से कहाँ कहाँ वो हमें मदद कर रहे हैं, करना चाहते हैं। यहाँ जो बैठे हैं, जो एक्सपर्ट है, वो हमारी मदद के लिए है। तो हम जीआई टैग के लिए प्रयत्न करना चाहिए और उसमें उनको जो जो चाहिए वो हमें देना चाहिए। और अगर वो 1200, 1500 या 1800 में अमेज़न में बिकता है, हम चाहते हैं हमें करीब करीब इतना तो न दे सके तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 400-500 रुपया लीटर भी अगर मिल जाता है तो हमारे लिए बहुत है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन ये काम करने के लिए ये जो मंच है वो हमारे सपोर्ट में आए हैं और उसके लिए ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है। बाकी का बहुत सारा जो प्रोडक्ट है उसके लिए हमें आगे आना चाहिए और हमारा जो प्रोडक्ट है वो हम बोल सकते हैं उनके लिए हमें कैसे आगे चलना चाहिए। तो उसके लिए हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है। और उसमें ट्राइफेड हम पूरा का पूरा हम चाह रहे हैं कि ट्राइफेड के थ्रू या दूसरे जो भी एजेंसी के थ्रू ये जीआई टैग मिले और उसके लिए हम काम करेंगे साथ में मिलके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आपने बताया कि जो ऑथोराइज यूज़र है उसको जो उसका जो वैल्यू है, रियल वैल्यू must reach to the authorized user. And in that regard, I would now move to our next panelist, Director GNLU. And GNLU has taken a very strong initiative. There is also the chair in GNLU, and they are actually helping not just registering GI, but also increasing authorized user in particular GIs. And I've also come to know that many of our artisans who are here today, although their craft has GI, they are still not authorized user. So जैसे माननीय मुख्य अतिथि ने बताया कि हम कैसे इसका फ़ायदा जो है वो ऑथोराइज यूज़र तक पहुंचा सके, आईपीआर के थ्रू कैसे इनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इनके जो धरोहर है उसकी रक्षा कर सके, उसको प्रिजर्व कर सके और उसको प्रमोट भी कर सके। If you can please share your views on that. Sure. My sincere apologies that I'll not be able to answer in Hindi. I come from Tamil Nadu, so you know, language is a politics there. தமிழ்நாட்டிலேருந்து யாராவது வந்திருக்கீங்களா? ஓ, நிறைய பேர் இருக்கீங்க, பரவாயில்ல, ரொம்ப சந்தோஷம். Now we have a very enabling legislation, like what Chairman Sir was mentioning. पहले
कोई लीगल प्रोविजन नहीं था जीआई को प्रोटेक्ट करने के लिए. अभी वी हैव द लेजिस्लेशन, अभी कानून है, प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया है. अभी एक ऑफिस है चेन्नई पे जीआई रजिस्टर करने का. अभी हमारा यूनिवर्सिटी में we will, I think now after having a discussion with all of you, I think that we should set up an IPR clinic. हम करके सबका किसी का ये IPR related problems कुछ भी है, आप हमारा members को आप can both of you stand up and introduce yourself. So हम हमारा colleagues है अभी आपके बीच में, उन लोग का कांटेक्ट नंबर्स ले लीजिए. आर्टिजन्स कोई जीआई का मदद चाहिए आप उन लोग से मिल सकते हैं, उन लोग रहेंगे इधर, आप उन लोग से मिलकर you can take their assistance, and I'm sure that we will be able to provide all legal support whatever is at free, right? We will not charge anything, we will do it free of cost through our team at GNLU. अभी इतना इनेबलिंग प्रोविजन है, प्लीज यहाँ गवर्नमेंट भी इतना इंटरेस्टेड है, दे वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जीएस. अभी सिर्फ 650 जीए हैं, उसको 10,000 जीए तक लेके जाने के लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है 2030 के बीच में. सो इसके ना हम सारे मिलके काम करना है. एक दो ना गवर्नमेंट कुछ फैसिलिटेट कर सकते हैं, बट हम कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा. सो इसलिए हम सब मिलके we will have to do something to ensure that our traditional knowledge is protected and we take the benefit of law. ये law का सिर्फ 3 object है. GI का legislation का, if you look at the preamble of the act, it has 3 objects. एक तो artisans का interest को protect करना है. Second, आप सर आपने बताया बाकी लोग ना हाउ दे आर इन्फ्रिंजिंग, चीटिंग पीपल, उसको इन्फ्रिंजमेंट को प्रिवेंट करना है. थर्ड को इसको एक्सपोर्ट में कैसे कर सके, हाउ डू वी एनकरेज एक्सपोर्ट एंड प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ दिस जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स. ये 3 ऑब्जेक्ट है. तीनों आपके बहुत हेल्प करेगा. So this is such a wonderful opportunity, and I am sure that NIFT, NIFT, NID and NLU will join together and form a consortium to help all the artisans to protect their GIs and also to register themselves as authorized users. Thank you so much. धन्यवाद सर. जैसे आपने बताया कि अभी भारत में सिर्फ 650 रजिस्टर्ड जीआई है, और हमारे माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने जीआई समागम में अनाउंसमेंट किया कि हम 2030 तक 10,000 जीआई रजिस्टर करेंगे, और उसमें भी हमारे माननीय मंत्री वस्त्र मंत्रालय ने भी ये बात की है कि हम भी इसमें इनिशिएटिव लेकर 3,000 जीआई करने की कोशिश करेंगे. और अभी प्रधानमंत्री जी ने भी स्वर्णिम भारत, और यही हमारे आज पैनल डिस्कशन का टाइटल भी है, विकास भी विरासत भी. सो आई वुड नाउ लाइक टू मूव टू अवर नेक्स्ट पैनलिस्ट who would basically guide us in how policies are framed, how government take such initiatives forward, how the shift in international outlook in terms of policy making is the new norm in Indian government. And while we look at European Union that has almost 15,000 to 20,000 registered GI, even China has more than 9,000 registered GI. So in this competitive global market, how we are going to promote our indigenous products into the premier global market, and what sort of policies and what sort of initiatives government has taken. So I would like to move to Dr. Joshi to please share his view on the same. नमस्कार.
Chairman Saab and my dear colleagues on the stage, और दोस्त स्टूडेंट्स और जो आए हैं जो अपनी विरासत के सूत्रधार है, सबको नमस्कार। अच्छा, पहले ऐसा कभी नहीं था, पहले ऐसा कभी नहीं था कि रोड पे कोई गिरा हो और लोग 108 का इंतज़ार करें। आज ये हालत हो गई है कि जब तक 108 नहीं आती, जब तक पुलिस नहीं आती, लोग देखते हैं, वीडियो बनाते हैं, लेकिन मानते हैं कि ये मेरा काम नहीं। सरकार तो ज़्यादातर पॉलिसीज़ बनाती है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स और ब्यूरोक्रेसी का जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से। उसमें मीडिया भी रोल प्ले करती है। इसमें टेक्निकल एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो है वो भी रोल प्ले करती हैं। अभी अभी मैंने इनको सर को पूछा तो उन्होंने बताया कि अभी कंसल्टेटिव प्रोसेस जो होना चाहिए एक क्षेत्र में जीआई के, वो उतना अभी इतने वहाँ तक आगे नहीं बढ़े हैं। मुझे लगता है ये कि शुभ शुरुआत है। हमारे यहाँ एक बात देखी गई है कि जो लाल किले की प्राचीर से एक बार बोला जाए फिर उसको बहुत एग्रेसिवली हम लोग लेते हैं। शायद अच्छी बात है, क्योंकि हमारी सोसाइटी का कल्चर ही ऐसा है कि जब तक किसी बात की झुंबेश ना हो तब तक वो कार्य होता नहीं। लेकिन मैं एक बात ये भी देख रहा हूँ कि अपनी विरासत पे जब तक गौरव नहीं होगा तब तक ये सब क्रियाओं में, ये सब जीआई रजिस्ट्रेशन है, इसका जो बढ़ावा है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आएगी। सरकार तो अपनी तरह से कर रही है, लेकिन वो भी कम है, क्योंकि सरकार में भी इंडिविजुअल्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं सरकार को। ज़्यादातर तो सरकार लोक कल्याण के लिए बनती है, लेकिन सरकार में बैठने वाले लोग कौन है उसके पर ये बहुत आधार रखता है कि काम कैसे आगे, पॉलिसीज़ कैसी बने। खैर, अभी मैं देख रहा था कि जिस तरह की आवश्यकताएं हैं उसका खाका तो बन चुका है, लेकिन जब तक आर्टिजन्स अपने आप नहीं ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेंगे, हैंड होल्डिंग है, उनका आइडेंटिफिकेशन है, डिस्ट्रिक्ट तक अगर कोई सरकारी कचहरी है, वहाँ कुछ फैसिलिटीज़ ऑलरेडी बन दी गई है, तो आर्टिजन्स को एटलीस्ट अपने घर से चल के डिस्ट्रिक्ट तक जाना पड़ेगा। थोड़ा एक्टिविज़म भी है इसमें, थोड़ा फॉलोअप भी है। सरकार इतना प्रोएक्टिव नहीं, क्योंकि सरकार प्रॉफिट पे नहीं चलती। जो इंस्टीट्यूशंस प्रॉफिट पे चलती हैं वो आपके घर तक आ जाएगी, आपको समझाएगी। दुर्भाग्य से सरकार में प्रॉफिट न होने के बावजूद भी इतना प्रोएक्टिव एक्शन होना चाहिए, वो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी चाहते हैं, क्योंकि हमें भी उसको एक जॉब की तरह नहीं देखना है। वी हैव टू लुक एट इट एज अ रोल टू प्ले इन विकसित भारत। तो जैसे अभी आर्टिशंस का रजिस्ट्रेशन हुआ है, हम लोग इनको प्रमोट भी करते हैं, प्लेटफॉर्म्स भी करते हैं। ये जो एडवाइजरी अभी तो जैसे JNLU के डायरेक्टर साहब ने, CVC साहब ने बताया, वैसे सरकार ने अभी जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि भाई इसका लीगल फ्रेमवर्क क्या हो, कौन हमें ऑन कॉल सपोर्ट कर सके, तो अभी वैसे इंस्टीट्यूशन भी बन चुकी है। लेकिन सोसाइटी हैज़ ऑल्सो टू प्ले अ रोल। समाज को अपने आप, जैसे साहब ने बताया, तो ये प्राइस के बारे में जो बताया उसमें भी मुझे कहना है कि देर आर सम एंट्री पॉइंट एक्टिविटी। हम भी जब रूरल डेवलपमेंट के लिए जाते हैं ना गांव में, कि चलो भाई आपको ये बना देंगे, ये बना देंगे, तो गाँव लोग को डाउट रहता है कि यार ये बाहर से NGO आई है, क्या करेगी। तो सबसे पहले उनको जो चाहिए वो हम करते हैं कि बस स्टैंड चाहिए, तालाब चाहिए, नहाने का घाट चाहिए, तो दैट इज़ एन एंट्री पॉइंट एक्टिविटी। फिर हमारा जो वाटर शेड या हरियाली का जो पूरा प्रोजेक्ट है वो धीरे धीरे धीरे, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। सेम थिंग इज द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, कि भाई हमारी 200 रुपये की चीज़ आप 1200 में बेच रहे हैं तो नहीं देंगे, वैसा नहीं हो सकता। वी कैनॉट टेक पोजिशन, ग्रेजुअली वी हैव टू टेक चेंज अवर पोजिशन, हमारी पोजिशन बदलनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छी बात हुई है कि अभी नेशनल इनके जैसे जब पवन जी ना, रमन जी आए हैं, तो इनके कोलैबोरेशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन,
private institutions and experts, government and the artisans, ये सब स्टेक होल्डर्स मिलके मुझे करेंगे. Government is always ready to reform. Government is always ready to, on the basis of experience के आधार पे, सरकार तो हर बार अपने रूल्स और रेगुलेशंस और फैसिलिटेशन में चेंज कर सकती है. दैट इज ऑलवेज पॉसिबल. वो ऐसा कोई स्टबर्न है नहीं. एंड वाई इट इज़ ईजी? क्योंकि एक ही टारगेट है, पब्लिक वेलफेयर, राइट? तो ये अभी तो गुजरात में करीब 25 रजिस्टर हुए हैं एंड वी आर इनटू प्रोसेस ऑफ अनदर 8 आई बिलीव. बट जब तक ये इसका प्राइम मिनिस्टर साहब एक अच्छी बात करते थे, हमारे इंदिरा आवास, सरदार आवास, फिर बच्चे को आंगनवाड़ी में क्या मिलना चाहिए, उसके बड़े बड़े कैंप्स करते थे. लोगों को लगता था कि इतनी महिलाओं को इकट्ठी करने की आवश्यकता क्या है, बट बेसिकली इट वाज डायरेक्ट एंगेजमेंट एंड डायरेक्ट एजुकेशन. उनको पता चल गया, अब गांव की महिला जानने लगी कि मुझे 20,000, मैं तो 10 साल पहले 15 साल पहले की, मुझे 20,000 मिलना है. सो इट कर्व्ड द नॉट ओनली अवेयरनेस तो बढ़ी लोगों में कि मेरे राइट्स क्या हैं, लेकिन साथ साथ दे वर ऑल्सो डिटरेंट टू द करप्शन दैट वाज हैपनिंग. So it was a great move by direct public engagement. I think that is one of the things that यहाँ भी एक आवश्यकता रहेगी. And I am also happy कि प्रॉफिट के माइंडसेट नहीं रखने वाले काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स गाँव में और छोटे छोटे शहरों में NGOs भी वैसे हैं. I think we should use them also to reform our policies, and whatever indications we get, the government does. Right? Thank you, I think, sir. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया. And I think what you just mentioned, that it's not for profit, and NIFT is also not for profit institution. We also provide platform to the artisans to showcase their dharohar, to sell, to benefit from that. And so we organize this craft mela in that regard. You touched upon two very interesting points. One is Jan Jagruti and Jan Jumbesh, and how government is now reaching out to the last person or the very people that are really going to benefit or going to be affected by the policy. I just wanted to add one point, historical point. I am also a student of history. कि जब हिंदुस्तान को कंट्रोल करना था बिफोर 250 years, सबसे पहले उनको हमारे इतिहास और हमारे जो मूल थे उससे हमें काटा. That was basic understanding of Macaulay also, and also if you read the Russians कि भाई how do you capture a country, तो कि पहले हम उनका जो इतिहास है, उनके जो पूर्वज ने उनको स्किल्स दिए, उससे पहले काटते हैं. एंड देन वी मेक देम, इनको अट्रैक्ट करते हैं दूसरे देशों की चीज़ों से, बाद में हम उनको अपने स्लेव्स बना लेते हैं. सो ये भी चीज़ आम आदमी को समझने की बिल्कुल आवश्यकता है. दैट इज़ वाई विरासत का PM साहब इतना इम्पोर्टेंट समझा रहे हैं, बिकॉज इट इज़ अवर ओन. Thank you again to further elaborate on that. So in this light, we actually move to our next very important facet of GI, and that is sustainability. And I would like to move to our next panelist, Professor Dr. Samir Sood, Director NIFT Gandhinagar, to tell us more about how he sees GI as an enabler of sustainable development and sustainability at large. नमस्कार आर्टिजन बंधुओं को एंड चेयरमैन साहब को एंड एवरीबडी ऑफ द डायस एंड ऑन दिस साइड ऑफ डायस. नमस्कार एवरीबडी एंड गुड मॉर्निंग. सो आज का जो टॉपिक है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ये आज का टॉपिक एक्चुअली में हमने गणतंत्र दिवस की थीम से लिया है. इस बार की गणतंत्र दिवस की थीम थी हमारी रिपब्लिक डे की, 71st रिपब्लिक डे की, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास. इसका थीम का पर्पस ये था, प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि अभी हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं 2030 में, हो सकता है उससे पहले ही बन जाए. 5th लार्जेस्ट है, बहुत जल्दी हम 4th होंगे और 2030 तक 3rd बन जाएंगे. और एट द सेम टाइम वी एस्पायर टू बी ए विकसित भारत बाय 2047, वी एस्पायर टू बी ए डेवलप्ड नेशन बाय 2047. और ये सपना नहीं है, ये हकीकत बनने वाला है 2047 में. पर प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि वी कैन नॉट थिंक अबाउट इंडिया मेकिंग ए विकसित भारत. हम विकसित भारत तभी बन पाएंगे जब हम अपनी विरासत को साथ लेके चलेंगे. विरासत का बहुत बड़ा रोल आने वाला है विकसित भारत को विकसित बनाने में. इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे को अपनी विरासत और लिगेसी को साथ लेके जाना. और उसकी इंपॉर्टेंस आप देखिए, गणतंत्र दिवस की थीम बनाया हमने ये कि अगर हम विकास चाहते हैं तो हमारे को विरासत साथ लेके चलनी पड़ेगी. और विरासत में 2 T's आर वेरी इंपॉर्टेंट.
जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि इसमें 2 टी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पहला टी है टेक्सटाइल्स, दूसरा टी है टूरिज्म। और टेक्सटाइल्स के अंदर इतनी छुपी हुई विरासत है, इतनी हिडन ट्रेजर्स छुपे हुए हैं हमारी कंट्री में, बिकॉज हम ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है इस प्लेनेट की। बहुत सारी विरासत हमारी कंट्री में छुपी हुई है। अगर हमारे को उस विरासत को, छुपी हुई विरासत को अगर हम जीआई टैग करा ले, तभी वो विरासत हमारी विरासत बन पाएगी। अभी वो वेरी सैडली वो हमारी विरासत नहीं है, क्योंकि अभी उसके ऊपर हमारा जीआई टैग नहीं है, अब रजिस्ट्रेशन हमारी नहीं है। अगर हमारी उसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, जीआई टैग, अगर मान लीजिए अगर आप इतने आर्टिजन बंधु आप बैठे, अगर आप में से अगर एक एक करके जीआई टैग अगर आप अपना करा लेंगे, तो उसमें आपके इंटरनेशनल मार्केट में आप ब्रांडिंग कर पाएंगे। अभी हमारी, जब तक जीआई टैग नहीं करेंगे तब तक हमारी ब्रांडिंग नहीं हो पाएगी, तब तक हमारी प्राइसिंग मैकेनिज्म अच्छा नहीं बन पाएगा। आप जो चाहते हैं प्राइस लेना कस्टमर से, जीआई टैग मिलने के बाद आपको, क्योंकि आर्टिजन्स को भी ये लगता होगा कि हम जीआई टैग क्यों कराएं, कंट्री को फायदा होगा, हमारा एक नाम होगा पूरे विश्व में कि हमारे यहाँ पे अभी 650 जीआई टैग्स है। हमारे 650 में हमारे को माननीय मंत्री जी ने बोला है कि 10,000 करने और 3,000 हमारी टेक्सटाइल को हमारे को टारगेट मिला है। पर आप लोगों को एक स्वाभाविक सा प्रश्न आता होगा कि हम जीआई टैग क्यों करें। जीआई टैग से आप देखिए, एक तो आपकी ब्रांडिंग इंक्रीज होगी, आपके इंटरनेशनल मार्केट में आपकी प्रेजेंस आ जाएगी, और हम आपका जो ब्रांड है आप ग्लोबल स्केल पे जा सकते हैं। अनलेस एंड अनटिल वी डू नॉट डू दैट, वो हमारे को उसमें प्रॉब्लम आने वाली है। और ये विकसित भारत में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है ये चीज़, अगर हम अपनी विरासत को सहेज के रखें और अपनी विरासत को हम रजिस्ट्रेशन करा लें। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो प्रधानमंत्री जी बार बार बोल रहे हैं कि हम विकसित भारत की बात तो करते हैं, पर विकसित भारत तभी विकसित भारत होगा जब 145 करोड़ जो हमारी जनसंख्या है सारी की सारी विकसित हो। 145 में से इस वक्त हमारी कंट्री की हालत ये है कि 100 करोड़ जो जनसंख्या है वो विलेजेस में रहती है, और हम ये नहीं चाहते कि वो जो विलेजेस की जो जनसंख्या है वो टाउन्स में आए, क्योंकि टाउन्स और सिटीज़ ऑलरेडी ओवर क्राउडेड हो चुके हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स टाउन्स और सिटीज़ में बिल्कुल मिनिमल है। आप विलेजेस में जाइए तो आपको हर आदमी बहुत खुश दिखेगा, टाउन्स में आइए हर आदमी के चेहरे पे आपको शिकन दिखाई देगी, भले ही बहुत अच्छा काम कर रहा हो पर दे विल नॉट बी हैप्पी। अगर आप खुश रहना चाहते हैं और विकसित भारत बनना चाहते हैं तो हमारे को सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी बनानी पड़ेगी, कि आपके जो विलेजेस में ही आपको ऐसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले कि आप वहीं पे ही एक सस्टेनेबल तरीके से आप रह पाए, और तभी हम एक आत्मनिर्भर भारत की बात कर पाएंगे। और उसमें क्राफ्ट सेक्टर विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है उसमें, कि जो विलेजेस से टाउन की माइग्रेशन ना हो। अगर विलेजेस से टाउन की माइग्रेशन नहीं होती है तो ऑब्वियसली हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो इंक्रीज होगी, और सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स जो यूएन ने बताए हैं वो ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। और दूसरा, सस्टेनेबिलिटी की हम बात करते हैं तो उसमें इक्विटी की बात बहुत इंपॉर्टेंट आती है। इक्विटी का मतलब कि अब हमारा जो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है, हम बहुत प्राउडली कहते हैं कि हमारे यहाँ पे 70% जो वर्कफोर्स है वो वुमेन वर्कफोर्स है, तो इक्विटी का फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ऑलरेडी हमने यूएन के गोल्स को सरपास कर दिया है उसमें। यूएन गोल कहते हैं कि मिनिमम 51% वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, हम तो उससे भी बहुत आगे हैं, और इसके लिए it is a very good initiative by all the handlooms and handicraft community of our country. Environmental friendly तो obviously हमारे handloom and handicrafts obviously environmental friendly तो है ही है, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री जी एक और बात बोलते हैं, स्वयं से वयम की अप्रोच करनी चाहिए, और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको स्वयं से वयम का नहीं मिलेगा। स्वयं और वयम संस्कृत शब्द है, स्वयं का मतलब मैं और वयम का मतलब हम। आज सारे हम, पूरा इकोसिस्टम हम बन के बैठा हुआ है आपके लिए, और ये सिर्फ आर्टिजन बंधुओं के लिए बैठा हुआ है वयम बन के। आप देखिए एनआईडी के डायरेक्टर भी बैठे हुए हैं, ट्राइफेड के चेयरमैन है, स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिन्होंने आपका जीआई टैग कराना है, हम तो आइडेंटिफाई करेंगे, पर सबसे अहम भूमिका इसमें जीएनएलयू की होने वाली है, क्योंकि इसमें जो लीगल इम्प्लीकेशंस है शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, और वो शायद निफ्ट के, अभी हमारे को एज ए निफ्ट इंस्टीट्यूशन हमारे को भी नहीं पता है वो, कि उसमें क्या क्या लीगल इम्प्लीकेशंस होंगी, कैसे एप्लीकेशन प्रोसेस होगी, उसमें क्या क्या स्टेजेस होंगे। बहुत अहम भूमिका इनकी होने वाली है, और डीपीआईआईटी के साथ इनका सीधा संपर्क है, बहुत अच्छे तरीके से आपको फैसिलिटेशन कराएंगे। एंड इट इज़ वेरी अप्रिशिएबल कि खुद वाइस चांसलर साहब खुद आए हैं इसके लिए, और इनकी पूरी टीम भी आई है, इनके 2 टीम मेंबर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करा दिया आप लोगों को। दोबारा आई वुड रिक्वेस्ट कि एक बार प्लीज़ स्टैंड अप हो जाइए। तो आपके जीआई टैग को आप इसको एक मुसीबत के तौर पे मत लीजिएगा, इसमें बहुत सारे आपको मुसीबत भी आने वाली है, आसान नहीं है। इसके लिए हम सब बैठे हैं इसके लिए, पर इसको आप आइडेंटिफाई कीजिए अपने इसको क्राफ्ट को, और उसके बाद आप प्रोसेस आज समझिए इनसे।
प्रोसेस समझने के बाद अगर आपको उसके बाद भी डिफिकल्टी आती है, आप दोबारा असित जी के पास जाइए और हमारे निफ्ट के पास आइए, जीएनएलयू के पास जाइए, हर वक्त आपको फैसिलिटेशन मिलेगी। पर अल्टीमेट हमारा पर्पस ये होना चाहिए कि हमारी जो विरासत है हम उस विरासत को अपना बनाए, और वो हम तभी बना पाएंगे जब हम उसको जीआई टैग करा पाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी के चलते जैसे सर ने बताया, निदेशक महोदय, उनका इनिशिएटिव है कि इस कार्यशाला में कल जो है हम 3 घंटे 10 से लेके 1 बजे तक एक कार्यशाला का आयोजन किया हुआ है जीएनएलयू एंड डीपीआईटी चेयर के माध्यम से। और उसमें हम चाहते हैं कि हम करीबन 20 जीआई इनिशिएट करेंगे। जो आप लोग आए उनमें से 20 एटलीस्ट जीआई हम इनिशिएट करेंगे। और बाकी वैसे जो कारीगर है जो जीआई क्राफ्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं पर ऑथोराइज यूज़र नहीं है, उनको भी हम ऑथोराइज यूज़र बनाना कैसे करना, वो सारी प्रक्रिया कल अग्रता जी आके हमें समझाएंगे, हमें उसके बारे में बताएंगे। आपको जो भी प्रश्न होंगे आपके, उसके वो उत्तर देंगे। वो सारी प्रक्रिया हम कल करने वाले हैं। तो कल 10 बजे से 1 बजे तक हम उनसे मिलेंगे और उनसे बात करेंगे, उनसे समझेंगे जीआई और ऑथोराइज यूज़र के बारे में। दूसरी जो निदेशक महोदय ने बात की कि हमें प्रमोशन, हाउ टू प्रमोट जीआई इन ग्लोबल मार्केट, एंड हु बेटर देन founding member and general secretary of BSL, our next panelist, Sri Raman Datta, can be in talking about the potential of GI in global market. So sir, if you can please share your views. बहुत बहुत धन्यवाद निफ्ट गांधीनगर, और बहुत बहुत स्वागत हमारे आर्टिजन भाइयों का यहाँ पे आने का और इस जर्नी का पार्टिसिपेशन। एंड थैंक यू द पैनलिस्ट हु आर देयर विद मी। तो मैं पहले अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एसोसिएशन कॉल्ड ब्रांड्स एंड सोर्सिंग लीडर्स एसोसिएशन। इट्स अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, और इसके अंदर 3 टाइप के कैटेगरी के लोग हैं। इंटरनेशनल ब्रांड्स हैविंग देयर ऑफिसेज इन इंडिया, मतलब इंटरनेशनल ब्रांड जिनके इंडिया में ऑफिस हैं, चाहे ज़ारा हो, मार्क्स एंड स्पेंसर हो, मैंगो हो, आप जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स के ऑफिसेज सोचेंगे हमारे पास करीब 90% उनके ब्रांड हेड और सोर्सिंग हेड हमारे मेंबर हैं। नंबर 2, इंडियन ब्रांड्स ऑन द लार्ज स्केल, मतलब जैसे स्पाइकर हो गया या मिंत्रा हो गया, आदित्य बिरला हो गया, फैब इंडिया हो गया, बीबा हो गया, तेनेरिया हो गया, इनके ब्रांड हेड एंड सोर्सिंग हेड एंड ओनर्स। तीसरी कैटेगरी है लार्ज फॉर्मेट बाइंग ऑफिसेस, जो इंडिया से बाहर के ब्रांड्स की सोर्सिंग करते हैं, जैसे ट्राइबर्ग, अस्मारा, लियन फंग, न्यू टाइम्स, इनके ब्रांड एंड सोर्सिंग हेड्स। सो इसमें 90% लोग सीनियर मोस्ट प्रोफेशनल्स हैं हमारे ट्रेड के, जिनकी एक्सपर्टी है हाउ टू बिल्ड ब्रांड एंड हाउ टू डू अ इफेक्टिव सोर्सिंग, मतलब इंडिया से सोर्सिंग करना। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमें इस एसोसिएशन को फॉर्म हुए भी 3 साल हुए हैं, लेकिन पहले ही साल में हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने हमें रिकॉग्नाइज़ किया, और पहले भारत टेक्स में, और हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए टू डू 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स। पहला एक्सपोर्ट प्रमोशन, दूसरा है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, मतलब जो हम इंडिया में इम्पोर्ट करते हैं हम कोशिश करें उस इम्पोर्ट को रोकें और इंडियन को बाहर लेके जाएं। तो इसके अंदर हमने 5 पहल बनाई। पहली है सस्टेनेबिलिटी, दूसरी है डिजिटलाइजेशन, तीसरी है मैन मेड फाइबर, चौथी है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एंड 5th इज डिज़ाइन एंड इनोवेशन। ये 5 पहल जो हमें $1 ट्रिलियन गोल प्रधानमंत्री के ले जाने के लिए इम्पॉर्टेंट प्ले करेगी। तो पहला है सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबिलिटी मैं अब ब्रांड्स एंड सोर्सिंग लीडर्स के बिहाफ पे जो हम सोचते हैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। यूरोपियन ब्रांड्स आज से 30 साल पहले इंडिया में आए, दे सॉ द रियल प्रैक्टिसेस ऑफ सस्टेनेबिलिटी जो हमारे आर्टिजन्स कर रहे हैं, जो हमारी डेली लाइफस्टाइल है। उन्होंने उस सारी नॉलेज को अपने ब्रांड बिल्डिंग में यूज़ किया है। मतलब उन्होंने जो भी काम इंडिया में आके किया, चाहे वो फेयर ट्रेड हो या ऑर्गेनिक की प्रोडक्शन करानी हो, कॉटन की, उन्होंने इनिशिएट किया, और उस जो कार्यशाला था या जो उसका जो तरीका था करने का, या उन्होंने जो इनिशिएटिव लिए, उन्होंने अपनी स्टोरीज में उसको यूज़ किया अपना ब्रांड बनाने के लिए। तो मेरे सामने बच्चे बैठे हैं,
कोई एक ब्रांड का नाम बताएं जो इंडिया में लाइफस्टाइल हो, मींस क्लोथिंग, शूज, ज्वेलरी, जो ग्लोबल ब्रांड बनाओ. कैन एनीबडी टेक अ नेम? वन ब्रांड. Can you take one Spanish brand or two Spanish brand which is global? So there are 18 global brands of Spain. Everybody said Zara. But हमने अपना ब्रांड नहीं बनाया. तो सेम चीज 70 के दशक में अमेरिका में भी आई, जब सारा अमेरिका यूरोपियन ब्रांड से डोमिनेटेड था और वहाँ की पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि हम अपने ब्रांड्स को ग्लोबल लेके जाएंगे. और वो गैप को, माइक्रोसॉफ्ट को उन्होंने प्रमोट किया पूरी दुनिया में. एंड दैट बिकेम मच बिगर सॉफ्ट पावर देन द एक्चुअल आर्मी ऑफ यूएस. तो अगर आप देखें तो मैकडोनल्ड या ज़ारा किसी भी दुनिया के कोने में हर दुनिया जानती है, लेकिन हमने ब्रांड बनाने में बहुत कुछ नहीं किया. आज की डेट में जितने भी ग्लोबल ब्रांड्स हैं कहीं ना कहीं इंडियन आर्ट और कल्चर से इंस्पायर्ड हैं. तो पहले वी नीड टू बी प्राउड. हमें अपने ब्रांड और अपनी कल्चर और अपनी विरासत पे गर्व होना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे चीफ गेस्ट सर ने कहा. नंबर 2, अब इसको इंडिया से बाहर कैसे ले जाना है, इसके लिए हमें बहुत इफ़ेक्टिव काम करने की ज़रूरत है. और हमारी जो बॉडी है, इट्स लाइक अ नेस्कॉम ऑफ आईटी इंडस्ट्री. तो नेस्कॉम के अंदर भी सीनियर मोस्ट प्रोफेशनल्स हैं. दे आर बिग नॉलेज बैंक्स एंड वी आर रेडी टू हैंड होल्ड टू आइडिएशन. यू वांट टू रीच टू एनी कंट्री. हमारे 11 इंटरनेशनल चैप्टर हैं बीएसएल के आज. तो अगर आप यूएई चैप्टर है, यूरोप के 2 चैप्टर्स हैं, जापान के बहुत चैप्टर्स हैं. तो वहाँ पर भी ब्रांड्स एंड सोर्सिंग लीडर, जैसे यूएई बोलेंगे तो अपैरल ग्रुप, लैंडमार्क ग्रुप, इन सब के सीईओज हमारे मेंबर हैं. एंड दे आर वेरी पैशनेट अबाउट इंडिया टू टेक ग्लोबल. सो और ग्लोबल ले जाने के लिए हमें अच्छी कहानी, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी आर्ट चाहिए. अच्छा आर्ट जो अपने आप में एक स्टोरी कहता हो. जैसे हमारे आर्टिजन भाई ने जो पगड़ी पहनी है, वो कहता है कि वो किस जगह से आते हैं. भाई साहब की पगड़ी बताती है वो कहाँ से आते हैं. लेकिन अगर ये रशिया में खड़े हों तो बताएं राजस्थान से आते हैं. सो दैट सॉफ्ट पावर वी नीड टू बिल्ड. And we are very happy to handhold anybody in any number, in any form, to take this soft power to the globe. Thank you. And in building such a soft power, what would really require, and as you said, as the 5th point, the 5th pillar of your edifice, that is design and innovation. And so that soft power, the building of the cultural soft power. And before you pass to our NIT director, I would really like our design faculties and design institution to see कि बाहर के ब्रांड हमारे आर्ट को कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं. अगर आप उस व्यू से देखना शुरू करेंगे, यू विल फाइंड क्लटर बहुत बड़ा. हमारी आर्ट ज़ारा ने यूज़ किए हैं, अर्बन आउटफिटर ने यूज़ किए हैं, सब बड़े ब्रांड यूज़ कर रहे हैं. तो हम अपने स्टूडेंट्स को कैसे इंटीग्रेट कराएं टू क्रिएट अवर ओन ब्रांड्स. बिकॉज आज की डेट में बैकएंड मोस्टली ब्रांड का इंडिया में है. मतलब जो इंटेलेक्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, पीवीएच, गैप, कोल्स, ये सब का यहाँ है. हम लोग यहाँ बैठ के वर्ल्ड के ब्रांड्स बनाते हैं क्योंकि हम लोग सस्ते हैं सप्लाई चेन में, मीन्स बैकएंड में. आज की डेट में पिछले 5 साल में फ्रंट एंड मीन्स डिज़ाइन एंड इनोवेशन भी इंडिया शिफ्ट हो चुका है. तो इंडिया में बैठ के हम ज़ारा बना रहे हैं, हम मार्क्स एंड स्पेंसर बना रहे हैं. डिज़ाइन की जो टीम्स हैं उनकी, वो यहाँ बैठी हैं, वहाँ नहीं बैठी हैं. और उसमें जो टैलेंट बैठा है वो हमारे ही इंस्टीट्यूट से निकले हुए हैं. सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट टू बिल्डिंग योर ब्रांड्स फॉर इंडिया, फॉर आर्टिजन एंड फॉर द ग्लोब. thank you so much, sir, for making my job easy. With that note, I'll pass it on to Dr. Mandal, please. Thank you, sir. नमस्कार. माननीय चेयरमैन महोदय, ट्राइफेड, उपस्थित बाकी अतिथि, यहाँ उपस्थित शिल्पकार, विद्यार्थी, प्राध्यापक और अन्य गणमान्य अतिथि जो इस सभागार में उपस्थित हैं.
मैं थोड़ा सा आई ट्राई टू एक्सप्लेन that why we need GI protection. If we look at India has more than 5,000 year of history of craft and culture, and craft is an integral part of our society. And when we say craft, sustainability or circular economy, it is a part of that. Any village, if you travel, irrespective of the state, they practice sustainable living. And the way craft evolved, initially the natural material which are there in that local region, based on the necessity of the society, Shilpakar or artisan developed that craft. And in our society, education institute plays a significant role. For example, we all know Nalanda University. In those days, Nalanda University was a resource of knowledge and wisdom for the entire world. That time there was no government, there was no ministry, but the entire world was benefited by those institutes. So when we talked about educational institute, that is the benchmark which needed in today's context. I will share one of the experience which Gurudev Rabindranath Thakur established Shilpa Sadan just 100 years back. When Gurudev Rabindranath Thakur traveled to Europe, he understood the importance of Shilpa, because the design itself, the word design started in European context in 1800th century onward. But that doesn't mean that India doesn't have that understanding. Indian design are very rooted and very much context specific. If you study any of the craft that evolved based on the necessity and the requirement of that particular region, whether it is a terracotta, whether it is a dokra, whether it is a textile, whether it is a brass and bell metal, and everything has a very root connected with the society. So after coming back, Gurudev Rabindranath Thakur started Shilpa Sadhana to promote village cottage industry and initiated cooperative society 100 years back and started Shilpa Sadhana. That time, the Karigar or the craftsman or the Shilpakar who was working with the Shilpa Sadhana, they get money is equivalent to today's professor scale. So you can understand how it has been visualized. Now when we see in today's context, I'll give you one example. This year, Republic Day at Home celebration, Honorable President Office had called us, and I think after immediately the Diwali, and they said, usually we send an invitation card in the form of one page, handmade paper printed, but this year we wanted to do it in a different way. And this year theme is Honorable President had given Southern 5 States. So you come up with something which will be sustainable, subtle, and which also represent the cultural heritage which Bharat has. So the task was given to us, and we developed an invitation kit which comprised of all 5 states of Southern in a very nicely bamboo material we have taken, and all the element which we have picked up, either there comes from ODOP. ODOP means one district, one product, which is also an initiative by DPIIT, or GI tag. And that was been highly appreciated by the across dignitaries. I think we have produced 1100 pieces in within 15 days, and with the help of Shilpakar from southern state. So the government also now understood the importance of Indian Virasat Se Vikas. And if you all remember, last year, 15 August May, Honorable Prime Minister had said, design in India made for the world. Now India has that potential. Indian designer has that potential that we can do best for the global. I'll give you another example. Leather and footwear sector has significant role in the society. I think almost more than 25% employees are women.
apart from the organized sector, there are a lot of craft sector which are being there across the country. If I name it, if you travel Agra, Jaipur, Agra, Kanpur, Bihar, Muzaffarpur, especially Bihar Sharif and Muzaffar. In Calcutta, heart of Calcutta, there is a place called Esplanade, near that Jan Bazaar, and in entire southern. Now, if we remove the organized sector, this cluster of leather actually take care of the larger segment of the society, which is the lower part of the society. And they create customized product for the based on the requirement of that particular person. पहले बाटा छोड़ के दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं था और बाटा खरीदने के लिए सबके पास सामर्थ्य भी नहीं था. तो ये जो आर्टिजन अपने ज़रूरत के हिसाब से रॉ मटेरियल को लेके प्रोसेस करके एंड देन जो समाज का जो ज़रूरत है वो करते थे. अभी क्राफ्ट का जो रिक्वायरमेंट है वो मतलब I spent more than 15 years working in Eastern and Northeastern past, especially in MSME sector, how design can help in MSME and craft sector. One word everybody said to me, I don't know whether it is a right platform to share, but I need to share, कि सर हम one man army है. Why one man army? हमको ही रॉ मटेरियल लाना पड़ता है, रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग भी हमको ही करना पड़ता है, डिज़ाइन भी हमको करना पड़ता है, बनाना भी हमको करना पड़ता है, क्वालिटी भी हमको देखना पड़ता है और मार्केट में भी हमको जाना पड़ता है. तो ये सारी चीज़ें आई एम श्योर आप लोग जो शिल्पकार यहाँ बैठे हैं आप लोग रेगुलरली करते हैं, बट इतने सारे चीज़ों होने के बाद भी हम जो प्रोडक्ट बनते हैं वो हम उस पर हम अपना अधिकार नहीं जमा पाते. क्यों? सिंपली हमारे पास GI टैग नहीं है. और ये सब इस स्थिति में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, whether it is NID, NIFT, NIFT and GNLU, they plays a significant role because it is the educational institute responsibility to protect our cultural heritage, which has been so old. I'm sure NID also have more, in NID we have more than 50 years of repository of craft across, means we have worked in every nook and corner of the country. And one small thing if we started doing, NID also have, and I'm sure NIFT also have a craft documentation. And student used to go, right? You guys used to go. So when you are going for field to study the craft, you document it in such a way that suffices the requirement of the GI tag. In that way, it will help us a lot to at least to some extent we'll get more number of documentation, right? See, GI, there are some legal procedure as there are some legal formalities as there, but student, when you are doing documentation, your documentation is more authentic and you do more qualitative part. You know what are the processes being involved, what are the hand tools they are using, their livelihood, and the history, how they've evolved. That is more important. And the contextual part, which is a legal point of view, the other people may not able to recognize the way a designer can understood. Now, if you make that document in such a way that it can help the other people, that will actually, the target which government has given the institute, that will help us quite a large in that way. So, it is a time that all institute work together, particular to this target. And I'm sure, I think if we all sit together, we'll figure out a mechanism. One small understanding based on this working in the field, that we need to have little bit of flexibility, because when we talked about craft, it was a sensitivity and sensibility. Both are equally important. And it is not a generic thing that one process goes and the output is not. It is very much contextual and it is with the hand. And we don't want to do craft in automation because that is the USP. If we do automation, then the industry is there. I'm sure Patola जो हम use कर रहे हैं, राजकोट में भी industrialization हो रहा है, but that is not our objective. We wanted to keep our heritage and identity with the same manner, and that is the thing which outside people are looking. So when we say customize, we need to be little bit of flexibility in terms of law, because lot of things are document are not available the way we are wanting. So somewhere we need to be, the policy maker need to be little flexible in terms of getting the data and putting it in a right format.
So I think this is the small I wanted to share with you. Thank you. Thank you so much, sir. And you would be pleased to know that we actually have Javaja artisans with us. And it would be, quite a historical moment, because it's been 50 years that NID initiated Javaja project back in 1975 through the initiative of Sri Ashok Chatterjee and Ravi Mathai. And it was in that legacy we have now a flourishing Javaja cluster. I just need to add that we are releasing Javaja book second edition. It is in a printing stage. अभी 10-15 दिनों में उसका हिंदी वर्जन अभी पब्लिश होगा, वो फाइनल स्टेज में है. Thank you so much. And that shows what an academic institution can do. And with that note, positive note, I think we'll conclude the session here. I'll just try and have a very quick concluding remark. Then we'll also open the floor for the quick question answer session. I think rather we just open the floor for quick question answer session. If you want to ask anything, if you want to throw any question to any of our panelists, please feel free, because I think this is a great opportunity. Such opportunities normally do not come. So if anybody has any question, please. अगर किसी को कुछ पूछना है तो हाँ, हिंदी में अगर आप किसी को भी कोई पूछना है तो कृपया अपना हाथ ऊपर कीजिए, so that we can pass on the mic. हम माइक आपके तरफ दे सकें. नमस्कार सभी को. मैं डॉक्टर राजकुमार यहाँ FMS डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ. मेरे पास 2 प्रश्न हैं. पहला प्रश्न हमारे डायरेक्टर JNLU सर से है. सर, जो असिस्टेंटशिप JNLU प्रोवाइड कर रही है क्राफ्ट के GI टैग के लिए, क्या वो सिर्फ गुजरात के लिए लिमिटेड है या नहीं? ओके, अच्छा. दूसरा प्रश्न सर मेरा अशोक सर से और रमन दत्ता सर से है. जब हम ब्रांड बिल्डिंग की आज बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ सर ने एक एग्जांपल भी दिया कि बाटा एक वक्त में एकमात्र शूज़ मैन्युफैक्चरर हुआ करता था और बहुत सारे लोग उस वक्त भी उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे. क्या ऐसा नहीं है, जितने भी आज मैं रिसर्चेस देखता हूँ या ऑब्जर्वेशंस जो मेरी आ रही हैं या CRD में जब मैं जाता हूँ, क्या हम क्राफ्ट को लग्जरी की तरफ ले जा रहे हैं या हमें क्राफ्ट को मासेस की तरफ ले जाना चाहिए? ये प्रश्न हमेशा मेरे मन में आता है. शायद आप इस पर कुछ प्रकाश डाल सकें तो. क्योंकि ब्रांड बिल्डिंग की जब हम बात कर रहे हैं आज के डेट में, ऑफ कोर्स जब फास्ट फैशन की बात कर रहे होते हैं, तो किस जगह हम क्राफ्ट को ले जाएं? क्योंकि बच्चों को जब मैं गाइड करता हूं तो मेरे लिए चैलेंज होता है कि मैं उनको क्या सिखाऊं कि क्या हमें एक लग्जरी ब्रांड बनाना है, क्या हम क्राफ्ट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं धरोहर के बेसिस पे या लग्जरी के बेसिस पे. वो पोजीशनिंग आपके हिसाब से कैसी होनी चाहिए? ऑफ कोर्स दोनों रास्ते हैं हमारे पास. बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है. एक तो हम उस एरा में हैं जिसमें अगर मैं उसको गोल्डन एरा बोलूँगा तो शायद वो भी कम होगा. अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, योगा को हम सिर्फ इंडिया में जानते थे, ठीक है. आज योगा पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है और हमारे प्रधानमंत्री, स्पेशली हमारे प्रधानमंत्री, ब्रांड इंडिया को किसी अलग लेवल पे ले जाने में उन्होंने एक अमेजिंग रोल प्ले किया है. और योगा से कन्वर्ट होकर कितने बड़े ब्रांड इंटरनेशनल जैसे लुलुलेमन और इंडिया के बहुत से ब्रांड मोटिवेट हुए हैं. नाउ योगा क्या है? क्या वो लग्जरी वर्ड है या कमोडिटी वर्ड है? योगा एक स्टोरी है हमारे को अच्छा बनाने की. उसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है कि योगा का इम्पैक्ट क्या होगा. ठीक है, हमारा इंडिविजुअल, हम कितने ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे या हम कितना ज़्यादा जिएंगे, कितनी बीमारियों से हम करेंगे, तो उसकी स्टोरी बहुत बड़ी है. सो बेसिकली हम जब आर्टिज़न की बात करते हैं, उनके पीछे की एक स्टोरी है, एक सोशल सस्टेनेबिलिटी की, एक इन्वायरमेंटल स्टोरी है हमारी. जब हम उस स्टोरी को बड़ा करेंगे तो वो ऑलवेज गोज इन नॉट लग्जरी बट इन कमोडिटी, कि उसका इम्पैक्ट कितना आने वाला है, कितनी लाइफ्स को हम बेनिफिट करने वाले हैं, कितनी महिलाओं को हम रोज़गार देने वाले हैं. तो सिर्फ एक स्टोरी, एक ब्रांड के पीछे, एक आर्ट के पीछे उसका इम्पैक्ट कितना आने वाला है, अगर वो मासेस में नहीं जा रहा है तो वो
स्टोरी कहीं नहीं जा रही है। लग्जरी, कमोडिटी, ये सेकंड वर्ड्स हैं, लेकिन वो स्टोरी लार्ज पूरी दुनिया में आनी चाहिए कि मैंने इनकी आर्ट ली तो मैं कितना अपने आप को कंट्रीब्यूटर मानता हूँ फॉर एनवायरनमेंट एज वेल एज सोशल। तो जितने आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर वो भाव डालना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ आर्ट नहीं है, इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। गंजीफा कार्ड का नाम आप लोगों ने सभी सुना है ना। गंजीफा कार्ड उड़ीसा के रघुराजपुर में, अभी हम लोग ताश पत्ते खेलते हैं ना, 52 कार्ड्स होते हैं। गंजीफा कार्ड का संख्या 1008 होती थी, 1008। और वो कई सारे देवी देवियों का उसका एक खुद का एक नैरेटिव है। वो उड़ीसा के रघुराजपुर में पहले होता था, रघुराजपुर में अभी भी होता है। फिर हमने जब ये राष्ट्रपति भवन के कार्यक्रम जब प्रोजेक्ट कर रहे थे, हमें रियलाइज पता चला कि कर्नाटका में मैसूर में भी वो गंजीफा कार्ड होती है ना। गंजीफा कार्ड खेलने वाले आज लोग नहीं है। न्यू जनरेशन क्या, हमारे जनरेशन भी उसको खेलने का जो पद्धति है उसको डिस्कवर करने के लिए उसके लिए जो IQ लेवल है उस तक हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। और गंजीफा कार्ड आज समापन में, वो जो आर्टिस्ट शिल्पकार हमारे साथ काम कर रहे थे वो नेशनल अवार्डी है और उनका जनरेशन लास्ट है। अभी ये धरोहर एकदम समाप्त होने के स्टेज पे है। सबसे पहले तो हमको अपने विरासत के ऊपर गर्व होना चाहिए और उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। हम जब भी बाहर जाते हैं, कहीं जाते हैं, किसी को कुछ उपहार देते हैं, अपने प्रांत के, अपने ज़िले के, भारत में ऐसा कोई ज़िला नहीं है जिसमें कोई क्राफ्ट नहीं है। अभी भी आज की स्थिति में भी भारत का कोई भी डिस्ट्रिक्ट पे आप जाइए, एक ना एक क्राफ्ट आपको ज़रूर मिलेगा। जब तक हम अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तब तक विश्व हमको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। ये बहुत सिंपल तरीका है। रही बात लग्जरी की या लाइवलीहुड की, ये एक बिजनेस गेम है जो दत्ता साहब ने अच्छे से बताया, उसमें कोई कमेंट करने की ये नहीं। बट अभी क्या हो रहा है ना, अभी बहुत सारे ऐसे क्राफ्ट हैं जो समाप्त होने के स्थिति पे है। अगर वो समाप्त हो गया, ज़्यादातर केस में अगर आप रिसर्च प्रोजेक्ट देखेंगे, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर गोल्ड माइंड है रिसर्च के लिए। जितने भी फॉरेन यूनिवर्सिटी भारत में आते वो अपने देश का कोई एक पार्ट को लेके डॉक्यूमेंट करते, वहाँ जाके पब्लिशिंग करते और वही पेपर हम रेफ़र करते। आप अपने घर के बारे में जान रहे, फॉरेन में बैठे कोई लेखक ने आपके घर में लिखा है किताब, आपको बता रहा है यहाँ ये था वो था, ऐसा है। बट हमको ये अपने घर पे पता नहीं। इसीलिए सबसे पहले अपना जो धरोहर है उसको रिकॉग्नाइज करना और उसको सम्मान देना बहुत ज़रूरी है आज की स्थिति में। जब हम क्राफ्ट को उस तरीके का सम्मान देंगे, ऑटोमेटिकली विश्व उसको सम्मान देगा, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू। सो इसी पे फॉलोअप क्वेश्चन था। एक आर्टिस्ट, हम आर्टिस्ट हैं, हमें आर्ट आता है, एंड टू एंड प्रोडक्ट हम बना लेते हैं, यहाँ तक सब सही है। मार्केट में आना है, ब्रांड बनानी है। हमारा एक GI प्रोडक्ट है, लेट्स से वी आर इन, मैं राजसमंद राजस्थान से हूँ, हमारा मोलेला टेराकोटा का काम है, मिट्टी की मूर्तियाँ, देवी देवता ये सब बनाता है। हमें आता है, सब कुछ आता है। अब हमारा प्रोडक्ट ब्रांड बन सकता है, इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है, XYZ कुछ भी है, लेकिन वो ब्रांड बनाने की एबिलिटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, वो सब हमें नहीं आता। एग्जांपल, बाहर से मार्केट में एक बंदा आता है, दिल्ली का कोई आया कि वो, उसका नॉलेज है, उसने इंडस्ट्री खड़ी कर दी पूरी, उसको पता चल गया हमारा प्रोडक्ट ये है, उसने उसके मोल्ड्स बना लिए और XYZ कोई भी तरीके से उसने डुप्लीकेट करके उसका मार्केट करने लग गया। स्टोरी हमारी है तो वर्ल्ड को पता ही है, वर्ल्ड नोज़ कि मोलेला टेराकोटा कुछ है, इंडिया GI टैग्ड है। प्रोडक्ट कहाँ से निकला, कैसे निकला, वो कभी एंड यूज़र को पता नहीं चलेगा, क्योंकि उस पर तुम ऐसा कोई GI का ठप्पा नहीं होता है बेसिकली, राइट। तो इस चीज़ को आप लोग कैसे देखते हो, लाइक एंड आर्टिजन साइड से आपका ये क्या व्यूज़ है, और जो नॉर्मल इंडस्ट्रियलिस्ट है उसका तो काम है ये सब करना, तो उसकी साइड से मतलब आपको क्या लगता है, दोनों साइड का क्या मानना है इन सब चीज़ों में? मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं गलत हो सकता हूँ, हाँ। सो मैंने पिछले 3 साल में जापान के ऊपर काफ़ी काम किया। आई थिंक 20-25 बार मैं जापान गया हूँ और
वहाँ के हाई कमिश्नर, वहाँ के इंडस्ट्री मिनिस्टर, हमारे ऐसी एक वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज हैं जहाँ पे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स इज अपॉइंटेड इन, इट्स अ पोस्ट गिवन टू IRS देयर, और उनका काम है, उनको एक इनिशिएटिव दिया है कि उनको कम से कम साल में 40 इवेंट्स करने हैं जहाँ पे इंडियन आर्ट, कल्चर और फूड फेस्टिवल को प्रमोट करना है थ्रू MEA। उन्होंने बोला कि इंडिया से आप वो लेके आओ जो लोग देख के एक्साइट हो, बट हम कनेक्ट नहीं कर पाए, मतलब हम उसको बहुत आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाए, बट वी टुक लार्ज फॉर्मेट ब्रांड्स। तो मेरा ये पैनल से रिक्वेस्ट है कि एक मैकेनिज्म क्रिएट करें, हमारा हर कंट्री के अंदर एक मिशन है इंडिया प्रमोट करने का, और जब तक ऐसी आर्ट्स को हम इंडिया से बाहर ले जाके एज अ मिशन नहीं लेके जाएंगे जहाँ पे डिफरेंट आर्ट्स को हम एग्जिबिट करें और इनकी हैंड होल्डिंग करें ब्रांड बनाने में, तो तब तक ये नहीं होगा। दूसरा, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, वाराणसी का एक स्कार्फ है जो हैंड वोवन होता है, इंडियन एम्बेसी उसको एज गिफ्टिंग खरीद रही है। उनको मालूम ही नहीं था वाराणसी के अंदर ये वाली एम्ब्रॉयडरी सिल्क एंड वूल की इतना ब्यूटीफुल स्कार्फ बन सकता है। ठीक है, तो हमारे को थ्रू अवर इंटरनेशनल मिशंस, थ्रू अवर एम्बेसीज, आई थिंक वी शुड टेक इट अ टास्क। जैसे आप 4 हमें GI हर रोज करने हैं, तो ऐसे ही 4 प्लेसेस पे वी नीड टू हैव अ मैकेनिज्म ऑफ आउटफ्लो, अदरवाइज दे विल ऑल गेट डिमोटिवेटेड कि हम कर किस लिए रहे हैं जब आउटफ्लो ही हमारा मैकेनिज्म डिसाइडेड नहीं है। तो पहले हमें मैकेनिज्म क्रिएट करना है। वी आर रेडी टू हेल्प यू टू टेक टू दोज कंट्रीज, टू मिशंस जहां पर इनके आर्ट फॉर्म पूरी दुनिया में जाने जाएं, तो ये अपने आप ब्रांड बन जाएंगे। मैं थोड़े दूसरे एंगल पे आपको मतलब समझने का प्रयास करूं। देखिए, मोलेला का जो टेराकोटा हॉर्स, भारत में 3 जगह हॉर्स बनती है। एक है बांकुड़ा का पांचमुड़ा का रेड हॉर्स, एक है आयनर का रेड हॉर्स तमिलनाडु, और आपका मोलेला। मोलेला और आयनर में सिमिलरिटीज़ ये है कि हैंड बिल्डिंग टेक्निक से बनती है और आप असेंबल करते हैं। बांकुड़ा का हॉर्स और आप बाकी दोनों जगह के हॉर्स में डिफरेंस है कि बांकुड़ा में, पांचमुड़ा में जो रेड हॉर्स बनती है वो सारे कंपोनेंट्स थ्रोइंग में बनाता है, एंड देन हैंड बिल्डिंग टेक्निक में उसको असेंबल करता है और उसके ऊपर वो कॉइलिंग का सरफेस डेकोरेशन करता है। ये जो इंटीग्रेट पार्ट है ना, ये इंडस्ट्री में नहीं होगा, पहली बात। दूसरी, ये जो नैरेटिव है, ये जो स्टोरी है, आप जब हम क्राफ्ट बेस की प्रोडक्ट मार्केट में रखते हैं, हम क्राफ्ट का प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम एक नैरेटिव जो एक इवोल्यूशन हुआ है उसको भी हम मार्केट के सामने रखते हैं, और लोग वो नैरेटिव के ऊपर वो प्रोडक्ट का जो वैल्यू प्रोपोजिशन होता है उस तरीके से देखते हैं। तो मुझे लगता है ये ब्रांड बिल्डिंग के क्रिएशन में इंस्टीट्यूशनल का एक बहुत बड़ा रोल होना चाहिए, ताकि ये जो डॉक्यूमेंटेशन, मोलेला का डॉक्यूमेंटेशन निफ्ट के पास भी होगा, NID के पास भी है, बट इसको उस लेवल पे पब्लिकेशन करना, आपके काम के साथ जोड़ना, तब जाके वो इंडस्ट्री इसके साथ कम्पीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर एक क्राफ्ट का नेचर अलग है। आप टेराकोटा के साथ ब्रास एंड बेल मेटल का कंपेयर नहीं कर सकते। टेराकोटा ब्रेकेबल है, उसका ट्रांसपोर्टेशन का इशू है। टेराकोटा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट नहीं है कि एकदम फाइन जैसा फिनिश आएगा, नहीं हो, और वो उसकी ब्यूटी है। ये सारे नैरेटिव जब हम बाहर के सामने रखेंगे तब लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। तो इसका डॉक्यूमेंटेशन और इसका पब्लिकेशन उस तरीके से ब्रांड बिल्डिंग के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है, जो मुझे लगता है इंस्टीट्यूशनल, स्पेशली जो स्टूडेंट जो रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ा सब्जेक्ट हो सकता है, एंड वो आर्टिजन के साथ, वो कम्युनिटी के साथ इसका मतलब दोनों साथ में मिलके ये काम कर सकता है। तो उससे क्या होगा, वो सबसे ज़्यादा फैलेगा। ब्रांड बिल्डिंग एक लेवल पे होगा, बट जब लार्ज स्केल में स्टूडेंट और अभी के जनरेशन के स्टूडेंट जब उसको एज ए नैरेटिव प्रमोट करेंगे ना, ब्रांड बिल्डिंग में भी नैरेटिव ही होता है, वो नैरेटिव आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाहर की दुनिया के सामने, वो एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। जी। और जैसे आपने बात की तो सर ने बोला ही था लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंफ्रिंजमेंट एंड काउंटरफिट। तो अगर ऐसा सही में हो रहा है तो आप लीगल केस फाइल कर सकते हैं थ्रू योर GI टैग। सो GI इज अ प्रोटेक्शन, अ लीगल प्रोटेक्शन
to your craft. So वो सर ने बात किया था जिसमें आप मेरे ख्याल से ट्रेसेबिलिटी की बात कर रहे हैं, जिससे आप ट्रेस कर पाए कि वेदर इट हैज़ कम फ्रॉम द ओरिजिनल आर्टिजन और नॉट। अभी वो कंट्री में मैकेनिज्म नहीं है, अब बन रहा है डेवलपमेंट कमीशन। हाँ नहीं वो, और हमारे कंट्री में भी कस्तूरी कॉटन में ट्रेसेबिलिटी हमने इंट्रोड्यूस कर दी है, जिसमें हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से हम पता लगा सकते हैं कि वो कॉटन हमारा जेनरिक कॉटन है या नहीं है। सिमिलर लाइंस में डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स के ऑफिस में काम शुरू हो चुका है। बहुत जल्दी ये आपको ट्रेसेबिलिटी उसमें आपको पता चल जाएगा वेदर इट हैज़ कम फ्रॉम द ओरिजिनल आर्टिजन या इसको किसी ने कॉपी किया हुआ है। वो दैट इज़ वेरी। हेलो सर, सबको नमस्कार, नमस्ते सर। मैं चंदेरी का हैंडवीव्स वीवर्स हूँ। मेरा रामपाल सिंह कोहली नाम है। मेरे चंदेरी में सर ओरिजिनल चंदेरी साड़ी बनती है, हथकरघा से बनती है सर, नॉट पावरलूम अलाउड। हैंडलूम से साड़ी बनती है, तो बनारस वाले चंदेरी साड़ी कह के बेचते हैं सर। बनारस में कोई चंदेरी गांव नहीं है। चंदेरी गांव चंदेरी मध्य प्रदेश में है, यूपी एमपी का बॉर्डर है। तो सर ये रिक्वेस्ट है। हाँ सर, ये नहीं आपका प्रश्न समझ गए, मैं आपको उत्तर देता हूँ। इसमें क्या है, टेक्सटाइल कमेटी हमारे यहाँ पे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का एक ऑफिस है, हैंडलूम मार्क इशू कर रहे हैं वो। और वो हैंडलूम मार्क अगर आप लगा देंगे, एक तो उसकी ट्रेसेबिलिटी हो जाएगी और फिर इट विल ऑथेंटिकेट कि वो ओरिजिनल हैंडलूम वीवर्स। आप हैंडलूम मार्क ले लीजिए। अगर आप सर सब कुछ आपने टेक्सटाइल कमेटी से ले लिया है। हाँ ले लिया, फिर मेरा तो बुनकर सेवा केंद्र। हाँ वही अपना टेक्सटाइल कमेटी का हैंडलूम मार्क है। IH भी ले लिया मैंने, सब कुछ ले लिया। अगर आपने ये लगा दिया तो देखिए, अगर आपने ये लगा दिया, कोशिश कर रहे हैं सर GI का। हाँ अगर आपने लगा दिया तो आपके कस्टमर को पता चल जाएगा कि आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट है या नहीं है। जी सर। उसके बाद अगर कोई और काउंटर फीट करता है तो काउंटर फीट को हैंडलूम मार्क नहीं मिलेगा। फिर इट इज टू द कस्टमर कि कस्टमर ओरिजिनल प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है जिसके ऊपर ये हैंडलूम मार्क है। जी हाँ, वो धीरे धीरे आएगा। जैसे पाटन के पटोला बन रहे हैं और जगह भी लोग बनाते हैं, लेकिन पाटन का है। हाँ ओरिजिनल वो जिस जगह का वो नाम ही है सर। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि हर स्टेट में उसका मोनो हो जाए सर। वो तो ऑलमोस्ट सारा हैंडलूम हमने कवर कर दिया, पूरी कंट्री का हैंडलूम ऑलरेडी कवर हो चुका है। अब वो हैंडीक्राफ्ट में करने वाले हैं। जी सर, जी सर, थैंक यू सर आप सब। इसी पे मेरा एक क्वेश्चन, मैं नासिर अंसारी मेरा नाम है और मैं महेश्वर से आया हूँ और प्राउडली मुझे कहने में आता है कि मैं 3rd जनरेशन वीवर हूँ महेश्वरी हैंड वीविंग का। सर मुझे इन्हीं सर के क्वेश्चन पे एक चीज़ ऐड करनी है कि जैसे चंदेरी साड़ी है, हम बनाते हैं, हमको मार्क मिल गया, हम जब लगा करके भेजेंगे उसको तो ये ऑथेंटिटी है कि ट्रेसेबल है। लेकिन कोई अगर चंदेरी के नाम से, जैसे वाराणसी या बनारस का बंदा कोई चंदेरी के नाम से साड़ी बेच रहा है और बोल रहा है कि ये चंदेरी साड़ी है, तो उसके खिलाफ हम कुछ केस रिगार्डिंग GI टैग कम कर सकते हैं क्या? नहीं, ये इन्फ्रिंजमेंट, ये ऑफेंस है, आप बिल्कुल केस कर सकते हैं अभी एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर। डेफिनेटली अभी लॉ है, प्रोविजन है, कोर्ट के पावर्स भी है, सो कर सकते हैं। दूसरा सर GI के रिगार्डिंग ही है मेरा क्वेश्चन। मैं टीम से भी कंसर्न करूंगा कि महेश्वरी साड़ी को GI टैग मिला हुआ है जिसके ऑथोराइज्ड यूज़र 195 है, ठीक है। और हमारे जो महेश्वर का क्राफ्ट कम्युनिटी है वहाँ पर तकरीबन 6000 वीवर्स बिलोंग करते हैं। 6000 वीवर्स डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं महेश्वरी हैंड वीविंग साड़ी से। तो वो ऑथराइज्ड यूज़र बनने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करनी होगी उनको, जो कल हम कर रहे हैं ना? ठीक है। ये सारे इस GI के और ऑथराइज यूजर के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके हैं, कल 3 घंटे का हमारे पास सेशन इसी के लिए है। 165 अभी जो आपके ऑथराइज यूजर है उसमें से उसको 4000 कैसे किया जाए, 6000 कैसे किया जाए, वो कल उसका वर्कशॉप होगा। तो अभी समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम को। थैंक यू। हाँ, इसके लिए 3 घंटे हमारे पास कल 3 घंटे हैं। सैनी जी, कोहली जी, हमारे पास 3 घंटे हैं। 1 मिनट बीच में
इस बारे में हमें खुद को ही अभी आगे आना चाहिए। सरकार इतने सारे जो बैठे हैं वो सभी को यहाँ लाके आपके सामने रख दिया है। कौन क्या कर सकता है, कहाँ हमें मदद दे सकता है, यहाँ बैठे हुए सब हम आपके लिए है। अब बात ये है कहाँ कहाँ कैसा हो रहा उनके लिए हमें आगे आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। हमारे प्रोडक्ट का डुप्लीकेशन हो रहा है, हम क्या करें, कैसे आगे जाइए, किसको बोले, ये पूरा का पूरा जागरूक तो हमें ही होना पड़ेगा। सरकार इसीलिए आज का विषय ये विकास और विरासत दोनों साथ में रख के आया है। तो ये सब कुछ हमारे लिए है और जीआई टैग के लिए हमें एक पागलपन लग जाना चाहिए। हमें ये करना ही है ताकि हमारा प्रोडक्ट का डुप्लीकेशन और कोई न कर सके, और इसके लिए हमें ही जागरूक बनना पड़ेगा। अगर हम नहीं आगे आएंगे तो आज मेरा ड्यूटी है, मैं करके निकल जाऊंगा, किसी और का ड्यूटी आएगा वो बोल के निकल जाएगा, लेकिन किसके लिए? तो हमारे लिए। तो हम अगर खुद जागरूक नहीं बनेंगे, एक्टिव नहीं होएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो उसके लिए जैसे स्टार्ट तो हमें से करना पड़ेगा, और इसमें अगर कोई सुधार लाना है, जैसे डिज़ाइन में कुछ लाना है तो हमारे एनआईडी वाले हैं, कायदे कानून के लिए है तो हमारे सामंता साहब है, बाकी का काम के लिए है तो यहाँ बैठे हुए सभी है। तो उसके लिए आगे तो हमें ही आना पड़ेगा। तो उसके लिए हम आगे कैसे आए, हमारा प्रोडक्ट को कैसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ले जाना है, तो उसमें जो कुछ छोटे मोटे जो सुझाव है वो ध्यान में रख के हमें आगे आना है। Thank you for those questions and this informative panel discussion. हम शिल्प की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हैं। आपकी कौशल और दृढ़ता इस समृद्ध परंपरा को जीवित रखती है, जिससे यह हमारी विरासत का गौरवशाली प्रतीक बन जाता है। भौगोलिक संकेत के रूप में शिल्प की मान्यता अपनी कड़ी मेहनत का सम्मान है और हम आपके अमूल्य योगदान का सम्मान करते हैं। आपकी शिल्प प्रेरणा देती रहे और हम बढ़ती रहे। हमारे देश के हस्तशिल्प और पारंपरिक कलाओं को संरक्षित और सशक्त रखने के लिए जीआई क्राफ्ट आर्टिसंस को योगदान का अविस्मरणीय है। उन्हें सम्मानित करते हैं। Our GI craft artisans play a crucial role in preserving and promoting India's rich cultural legacy. It's time to felicitate these talented artisans for their dedicated and craftsmanship. It's an honor to acknowledge the initiative by GNLU Gandhinagar and NIFT Gandhinagar for today's felicitation event for the honorable artisans. I invite Professor Dr. Shantakumar sir and Professor Dr. Sameer Sood sir to felicitate the artisans. अब मैं यहाँ प्रस्तुत सारे शिल्पकारों को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मातानी पछेड़ी फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात, महेश चितारा जी। मोलेला टेराकोटा फ्रॉम उदयपुर राजस्थान, कैलाश देवी जी। बाराबांकी वीव फ्रॉम उत्तर प्रदेश, श्री असलम जी। असलम जी। गोरखपुर टेराकोटा फ्रॉम उत्तर प्रदेश, दिनेश प्रजापति जी। महेश्वरी वीव फ्रॉम मध्य प्रदेश, नसीर अंसारी जी। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जिन वुडन फ्रेम्स को इस्तेमाल किया जा रहा है सम्मानित करने के लिए, वो कच्छ के वुडन क्राफ्ट से आए हैं। अब आगे बढ़ते हुए
मैं बुलाना चाहूँगी यूसुफ अंसारी जी और रामपाल सिंह कोहली जी फ्रॉम चंदेरी, मध्य प्रदेश। यूसुफ अंसारी जी और रामपाल सिंह कोहली जी, चंदेरी क्राफ्ट फ्रॉम मध्य प्रदेश। कच्छ शॉल्स फ्रॉम गुजरात, परबत लधुभाई पडियार जी। सूफ एम्ब्रॉयडरी फ्रॉम बानसकांता, गुजरात, विजय राठौर जी। सूफ एम्ब्रॉयडरी फ्रॉम बानसकांता, गुजरात, विजय राठौर जी। कच्छ शॉल्स फ्रॉम गुजरात, परबत लधुभाई पडियार जी। सौदागिरी अहमदाबाद, गुजरात, श्री शाकिर बांग्लावाला जी। तांगलिया, सौराष्ट्र, जहांभाई राठौर जी। अब मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि वो अपनी सीट पे बैठ जाएं। मैं सभी पैनल मेंबर्स और आर्टिजन्स को धन्यवाद देना चाहूँगी। आज के सफल आयोजन में सहयोग देने वाले सभी सम्माननीय अतिथियों, पैनलिस्ट, आयोजकों और छात्रों को हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। We extend our heartfelt gratitude to our esteemed guests, panelists, teachers, and students for making this event a grand success. Thank you all for being a part of Vikas or Virasat. Your dedication ensures that we celebrate craftsmanship and culture in the best way possible. Now, I kindly request everyone to proceed for the inauguration of Craft Bazaar to Tanariri. After the inauguration, we will move to the reception area. प्रोफेसर ने पूछा ना काटना नहीं है, काटने से कोई बीएसएफ का कोई इवेंट हो ना, उसमें आजीवन को एक बार उनको भी बुलाओ। मैंने इनको कमिटमेंट किया। हाँ नहीं, आप उसमें आप ब्रांड्स को तो बुलाते हो, इनको भी बुलाओ ना एक बार। तो ब्रांड 11 मिनट तो आई नहीं।
वगैरह बनाया था देसी का, रक्षा मतलब संकट का वर्ड है और इसको हिंदी में नाम के रक्षा देसी का बनाया था मारने के लिए उन्होंने। तो ये हम कुछ नहीं, हमारा काम है ये कैमरा 300 सालों से हम ये काम कर रहे हैं जयपुर राग साहब हमको एक तरह से प्राप्त होता है। जब अपन पेड़ की पूजा करते हैं इसके रूट्स के ऊपर जड़ों के ऊपर एकदम जमा होता है ये चक्कर, तो पहले हम वो लेके आते थे ऊपर के उसको प्यूरीफाइन करके उसको हम जो है काम में लिया। आजकल इसकी खेती होने लगी है मुजफ्फरपुर में, आपके बलरामपुर में या इसकी खेती होती है। ये कैनिकेट्स होता है, एक जीव होता है जो अपनी दाल निकालता है और दाल निकाल कर वो उसको छोड़ देता है रूट्स के ऊपर, तो वो रूट्स प्योर होती है, वो कोई हार्मफुल करके बॉडी को नुकसान नहीं करता है। ये अपने आपको जो है ना फ्रेंडली है, स्किन फ्रेंडली है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ओजोन फ्रेंडली है। ज़्यादा राग चाहिए तो आप झारखंड से जी उनका पौधा मंगवा सकते हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा ज़्यादा बिहार में वैशाली में भी ये जो बनाया में कड़ा देखिए आप, ये इंडिया में फर्स्ट टाइम मेरे फादर ने बनाया था सर, इंडिया में फर्स्ट टाइम ये मेरे फादर ने बनाया 1972 के अंदर, 70 के अंदर। और जब 1965 वन थिंग आई टोल्ड यू सर कि 1961 में जब महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस चार्ल्स जब आए थे विजिट करने के लिए, तो मेरे फादर ने बनाकर उसको भेज दिया। की मिट्टी है, ये हमारे लोकल गांव की मोलेला हमारा गाँव बना है, वहाँ की नदी से निकली हुई मिट्टी है। वो चिकनी मिट्टी को हम भिगो के इस तरीके की मिट्टी बनाती है और इससे हम हमारी मूर्तियाँ बनाते हैं। तो कहानी कुछ इस तरीके की थी कि हमारे गाँव में अंडा गुजरा 800 साल पहले, जिसको कोई दिखता नहीं था। तो एक दिन उसको सपने में धर्मराज जी, हमारे लोकल गॉड है वहाँ के, जो हॉर्स पे आते हैं, धर्मराज जी उसको सपने में मिलते हैं और वो मिलते हैं कि मेरी मूर्ति बना, मैं तो अंधा हूँ, मैं कैसे बनाऊँगा। मेरे सपने में स्वप्न छाया दिखती है भगवान, तो उसको देख के अगले दिन उठते हैं और फिर एक मूर्ति का निर्माण करते हैं जो कुछ इस तरीके का। ये निर्माण करने का आप लोगों की अपनी पैसा है, फिर वो मान्यता बढ़ती गई और ये मोलेरा के कुमार इस तरह की मूर्ति बनाते हैं। और उसके आसपास गुजरात, यूपी, राजस्थान, यहाँ से लोग आते थे कि भगवान की मूर्ति को लेना और फिर हमारे जो उनके नज़दीकी मंदिर है वहाँ पे स्थापित हो तो प्राण प्रतिष्ठा ये मान्यता चलती है। और ऐसे धीरे धीरे 800-500 साल से फिर टाइम के साथ इसकी इनोवेशन की जरूरत है, क्योंकि अब लोगों ने बिलीव करना कम कर दिया। तो फिर इनोवेशन में हमने डेली जो रूरल चीज़ें होती है गाँव में क्या न्याय हुई है उसके हमने ये निर्माण किया, जैसे डांडिया खेलते हुए बच्चा खेत में जाते हुए ये हो रहा है, कुएं से पानी निकालते हुए। तो ये चीज़ें क्या लोगों को पसंद करके इसको होम डेकोर की तरह यूज़ करने लगे। सब भगवान की मान्यताओं में नहीं जाना चाहते, तो मैं होम डेकोर में थोड़ा इनोवेशन करके उस लाइन में घुसूँ। हाँ, इसका पूरा जीवन उनका पूरा जो आपने स्टोरी बताई उनका मोनोग्राम देखे अगर कोई भी अपना मोबाइल से वो स्प्रेड करे तो पूरा स्टोरी उनको मिल जाएगी। ये QR कोड लग जाएगा, यानी कि पूरा स्टोरी पता चलेगा ये रहेगा। उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट बनाया फॉलो फिगर्स उसके अलावा एक और इनोवेशन अभी रिसेंटली करी है, लाइक 5-7 साल इसी मिट्टी की बनाने का जैसे हमें हमारे ऑप्शंस मिलते रहेंगे। ये नया मैंने 5-7 साल से मैंने खुद से बनाना चाहिए, ये काफ़ी अच्छी है। ये सारा और सारा लाइट वेट, ऐसा नहीं कि मिट्टी है तो हैवी होगा, सब वेरिएबल है सारा और एकदम लाइट। ये
सा वो छोटा छोटा जो तार है जाली जैसा, हाँ वो लगा के ऊपर से लगा के थोड़ा फिनिश कर, तो वो कर दो ताकि वो टूटने का सवाल नहीं कर तो कोई ये भी नहीं है गिर गया तो नहीं टूटता है तो टूटता ही है, लेकिन अगर उनका जाली आ जाए तो ज़्यादा अच्छा पूरा देख लो। इसमें थोड़ा और जैसे गणेश जी का है, श्रीनाथ भगवान का है, ऐसा भी जाओ और चाहने वाले जाएंगे। सर आमने साथ में बहुत फ्रिक्वेंटली અહીંયા અમદાવાદ અહીંયા અમારા કેમ્પસ પર हाँ ये हर जगह होते हैं, एडीआई में भी मिलेंगे, हाँ वो हर जगह मिलेंगे सर। सर ऊपर का उनको सीधा मार्केट ही मिल जाएगा और हम उनको पैनलाइज कर देंगे तो इतना जितना भी प्रोडक्ट आता है पूरा का पूरा हम सर प्रोसेस चार्ट आप कर रहे हैं, हमारी एक लिमिटेशन है, ट्राइबल के सीधा किसी तो ये भी डेमोन्स्ट्रेशन वर्कशॉप करवाएंगे। मोबाइल आ रहा है, सॉरी सर ये जो हमारा जरी का जो काम है सर, ये फेमस काम है हमारा। एक समय था कि सोने और चांदी के तार हमको मिलते थे जब राजाशाही थी तब, उसमें से हम कढ़ाई करके जैसे तलवार का म्यान हो, भाला हो, या फिर वो रानी हो, उसी में ये सब काम करके हम उसको देते थे। तो राजा उस टाइम में खुश होकर हमको जमीन दे देते थे या तो इनके भी नाम ये लेर है, गोल्ड है, बकरू है, जो आर्ट होता है उसके भी नाम है। और रियल में इधर जरी का काम जो हमारा हो रहा है ये अत्यंत कई सालों से ये हो रहा है ऐसा काम। और दूसरा ये है कि सर मैंने जितना सीखा मैंने सबको सिखाया, तो आज पूरा कारीगर जो है मेरे साथ 100 कारीगर जुड़े हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का है कि सबका विकास सबका साथ, उस उद्देश्य से मैं चल रहा हूँ। तो बस 100 कारीगरों के साथ घूम रहा हूँ और बड़ी बड़ी ब्रांडों के साथ भी काम कर रहा हूँ, वो भी ईमानदारी से। एक ऑर्डर ख़त्म होता ही नहीं दूसरा आ जाता है। कोरोना था उस टाइम में मैंने 2 साल तक पूरे कच्छ के कारीगर थे उसका अपने भूसे के ऊपर काम दिया और उस टाइम में पीएम करके मैंने 25 लाख की लोन ली। तो आज कच्छ में जितना भी फला फूला है लेदर आर्ट उसमें कहीं ना कहीं मैं हिस्सेदार हूँ।
ये जरी का काम है। अभी जयपुर से यस एक मेरी तरफ से गिफ्ट आप एक एक प्लीज प्लीज
टांगले की खासियत ये होती है कि दोनों तरफ सेम होता है कि जब वीव होता है तो उनके साथ जब कपड़ा बनाते हैं उनके साथ हाथ से ही बनता है। टांगले को GI भी मिला है। टांगले को GI या नेट में से जो वनीता सेठ और राजेश गुप्ता था 2008 में, उन्होंने बहुत मेहनत करके उन्होंने GI भी दिलाया टांगले को, ये उनकी देन है। कितने रजिस्टर्ड यूजर है इसमें? कितने यूजर्स हैं इसमें? इसमें GI टैग में अभी 50 कारीगर। टांगलिया जो लुप्त हो रहा था सर, तो 2007 में जो नीट वालों ने वही देखा, जो वनीता सेठ और राजेश गुप्ता, तो उनको लगा कि वो एक क्राफ्ट यूनिक है और लुप्त हो रहा है, तो उन्होंने हमको गवर्नमेंट से 5 साल का प्रोजेक्ट लिया। फिर हमको ट्रेनिंग दी कि आप जो सेठ को बुल में जो हमारा जो भरवाड़ कम्युनिटी है और डांगसिया कम्युनिटी दोनों का लेडीज जो पेटीकोट के लिए यूज करता था, तो सिर्फ 2 कम्युनिटी, तो उन्होंने बोला कि जो आप बुल में बना रहे हैं तो आप कॉटन में सिल्क में बनाओ, साड़ी बनाओ, दुपट्टा, स्टोल, मफलर, कुशन कवर। तो हमको ट्रेनिंग दी, कलर कॉम्बिनेशन किया लिए भी हमको सिखाया। फिर वही टांगलिया का धीरे धीरे मार्केट में उन्होंने हमको GI भी दिखाया। पिछले साल जो लाए थे सामान से अलग स्टोर 1500 ये कॉटन सिल्क में भी आता है। ये साड़ी टांगलिया मशीन से नहीं हो सकता। आज का युग विज्ञान और टेक्नोलॉजी का युग है। विज्ञान और इतना आगे बढ़ेगा ये फ्यूचर में मुद्दा को जिंदा बनाना, लेकिन हमारा टांगलिया मशीन से नहीं होगा, वो हमारा चैलेंज है। मैं हर साल आता हूँ। ये मेरा ये लिनन कॉटन बनाया है और ये पेवर 100% कॉटन की है। मेरा सारा माल कॉटन का है। ये लिनन कॉटन क्या ये स्टोर बनाया? हाँ, स्टोर बनाया? ये दुपट्टा मैं किसी का काम नहीं लाया हूँ कुर्ता बनाने का। मेरा मोदी जी कुर्ता पहन चुके हैं, बनाया गया था लेके वाइट एकदम खड़ा रहता है। तब कुर्ता जो है ना पहनोगे एकदम ऐसे रहता है। हाँ, ये महंगा वाला लेना है। बांग्लादेश तो जीरो Irish linen is the most expensive. इसको बनाने में बड़ी दिक्कत आती है, बहुत मेहनत कर। लिनन बनाना आसान नहीं है अगर प्योर लिनन बगैर बल वाला है। Majorly but man-made fibers we are basically regenerative fibers, banana, bamboo fibers, we are basically number 1 in industry. ये प्योर कॉटन है, इसमें कोई भी चिकाई नहीं है, यानी प्योर कॉटन, इसको बोलते हैं कॉटन। ये यहाँ के हिसाब से 600 रुपये, यानी बहुत कम। स्टूडेंट मेरे पास जाते हैं कि मैं थोड़े ही लाया हूँ, यहाँ बहुत कम 600 रुपये, 2.5 मीटर है। इसमें हमने कोई वो नहीं ले रहे हैं, खाली एक बार हमको दिखाना है, बेचना है। मेरा मार्केट है। आप लोग जो ये टेक की बात करते हैं, हम टेक लगाते हैं अपना भी सर। हम अपना टेक इस पर लगा के अगर उस पर मोबाइल पर सर्च करोगे तो बता देगा फला कारीगर का बनाया है, फला जगह का बना है। मैं आइका कंपनी को सपोर्ट करती है, आइका और एशियन दोनों मिलकर उनको सपोर्ट करती है। क्या भाव है? ये 250 रुपये पर मीटर, इंग्लिश नहीं आता है, 250 रुपये पर मीटर। हाँ, एक कुर्ता में कितना चाहिए आपके लिए?
वैसे तो 2.5 मीटर लगता है, लेकिन इसको 3 मीटर देना। ये कॉटन है ना? हाँ 3 मीटर दे देता हूँ पूरा। कितना होता है? आ जाओ, इधर ही दे दो। ये कलर और उनको दिखा दें। नहीं बताओ नहीं कलर देखो। एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। कलर यदि बिल्कुल आपके पहनने वाले। मुझे ये नहीं यही लो, आप वही लो। नीचे अंदर एंटर काटा जाम कंबाइन एक में जैसे वाइन को नहीं है, ऐसे अंदर एकदम सील पैक दिखता है। हाँ वो वैसे दिखा अपनी प्राचीन कला थी ना ये ब्लॉक प्रिंटिंग, 400 जुनी कला और नाना ब्लॉक प्रिंटिंग था एकदम जीरो क्या कार्य आज है ना પેલા પીઠાપુરમાં બની કારીગરો અમારા દાદાના દાદાને ક્યાંથી બની ગઈ એ લોકો પણ વર્ષો ચોથી પેઢી છે પીઠાપુરમાં हाँ आज दादा में छिलका भी शरीर में नुकसान નથી થતું એનો બની ના થાય કારણ કે આમાં શું પ્રોસિજર લાંબી થતી હતી 4 દિવસ રાહ જોવા જોઈએ હવે સામના ટ્રેનમાં એક ફ્રી કલર એકો ફ્રેમ લીધે આમાં કોઈ તકલીફ થતી નથી सर कैसे अच्छे आप कैसे बहुत बढ़िया सर थैंक यू आपको बुलाया नहीं इनमें सपोर्ट पहला 2006 वाला काम है सर 2006 2007 में सोना ग्यारह पर नीचे हमारे बड़ी गाइडलाइन करी ना जो जेट होती है ना कारण हाँ 2006 की सर उससे नुकसान नहीं होता वेजिटेबल में एक कलर के लिए 4 दिन राह दिखना और कोई नुकसान भी नहीं होता इससे इसका जो कलर होता है ना ये ब्रांड होती है वो लोग ये यूज़ करते हैं हाँ सावला એ રીતના અમે પ્રિન્ટિંગ પછી આમાં સર એક કામ કરીએ ब्लॉक में जाकर डिजाइन बनेगी हाँ तो ये उस पर सेट नहीं होता इसका मैं ब्लॉक बनवा देता ये डिजाइन आज डिजाइन फैब्रिक खादी पे और मिक्स है ये जो सेट उसी डिजाइन का नेक का डिजाइन बना थैंक यू सर